اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم سرور کے نشیب و فراز میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، اور آج ہم اس قصے کا خلاصہ پیش کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کچھ بھی مس نہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کے پیشانی پر نبوت کے نشان تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبات حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کے تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پہ بٹھا دیا اور ہاتھ اور پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے کرتے کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہوئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھے کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے ذرا دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کی طرف بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا لیا مگر اس کے کرتے پر ذرا سے بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی من دھڑک کہانی اور فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے تھے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قفیلہ مدینے سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قفیلے کا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ اس شخص نے ڈول کو کھینچا تو آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ جب اس نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو خوشی خوشی سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، اگر تم اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا بیچ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اسے یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک کہ اس کی خبر ہی نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک بھی لفظ نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے قفیلہ مصر کو چلا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا اور اس نے اپنے ایک وزیر اعظم کفتیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانہ سونپ دیا تھا، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے کتاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو یہ معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو رہے ہیں، وہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنا ہی چاندی اور اتنی ہی مشک اور اتنا ہی ریشم دے کر خرید لیا۔
और घर जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस गुलाम को निहायत ही अजाज और कराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र 13 से 17 बरस बताई जाती है। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की फरिफ्ता हो गई। एक दिन खूब बनाव सिंगार कर कर अपनी तरफ माइल करने लगी। आपने फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज उसके साथ कोई खियानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद जुलेखा आपकी तरफ आई तो आप भागने लगे और जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका कुर्ता पकड़ लिया जो फट गया। इत्तेफाक से ठीक उसी हालत में अजीज मिस्र मकान में दाखिल हुए और उन दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। उस वक्त जुलेखा ने मकारी की और फौरन बोली कि इस गुलाम की सजा ये है कि इसको जेल खाने में भेज दिया जाए या दूसरी कोई सजा दी जाए, क्योंकि उसने तुम्हारी घर वाली के साथ बुराई का इरादा किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अजीज मिस्र, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। इसने खुद मुझे गुमराह करने की कोशिश की। इससे बचने के लिए भागा तो इसने मेरा पीछा किया। अजीज मिस्र दोनों के बयान सुनकर हैरान रह गए और बोला कि ए यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूं कि तुम सच्चे हो। आपने फरमाया घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुआ है जो जुलेखा के मामू का लड़का है। उसे दरियाफ्त कर लीजिए कि वाकया क्या है। अजीज मिस्र ने कहा कि भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और कैसे बोलेगा। आपने फरमाया कि अल्लाह उसको जरूर मेरी बेगुनाही की शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। जब अजीज मिस्र ने उस बच्चे से पूछा, उस बच्चे ने आवाज़ बुलंद जबान में ये कहा, अगर यूसुफ की कमीज सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और ये झूठे हैं, और अगर उनकी कमीज पीछे की तरफ से फटी हो तो औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। बच्चे के जबान से अजीज मिस्र ने ये शहादत सुनकर देखा तो उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो उस वक्त अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए ये कहा कि तुम औरतों की मक्कारी है, वाकई तुम्हारी मक्कारी बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का ख्याल ना करो और ए औरत, तू अपनी गुनाह की माफी मांग, और यकीन तौर पर तू ही खताकार थी। शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतों में इस वाक़या का चर्चा होने लगा। कहने लगी कि अजीज़े मिस्र की बीवी अपने गुलाम को वरगलाना चाहती थी। ये कितनी हैरत अंगेज बात है। जब जुलेखा ने ये बात सुनी तो उन औरतों को दावत भेजी और फल वगैरह उनके सामने रख दिया और एक छुरी पकड़वा दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, जरा इनके सामने आए। जब उन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फल काटने की बजाय अपने हाथ काट लिए। बोला, ये तो इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता है। उन खवातीन ने अपने अपने तौर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके दामन फरेब में ना फंसे। जब इस तरह के वाक़यात बढ़ गए तो हुजरा और अरकान सल्तनत से अजीज़े मिस्र ने मशवरा किया और तय पाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भिजवा दिया जाए। आपने जेल पहुंचकर ये फरमाया कि या अल्लाह, ये कैद खाने की कोठरी मुझको उस बला से ज्यादा महबूब है जिस तरफ जुलेखा और खवातीन मिस्र मुझे बुला रही थी। आप 7 से 12 बरस जेल खाने में रहे और कैदियों में तौहीद की दावत फरमाते रहे। तमाम कैदी आपके हुस्न इखलाक की, आपके किरदार के दीवाने हो गए। ये अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल हुए उस दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम, एक शराब पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाने में दाखिल हुए। दोनों पर इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। उन दोनों ने जेल में ख्वाब देखा। उन दोनों ने अपना अपना ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया, जिसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की, जो 100% सही साबित हुई। पहले का ख्वाब था कि मैंने देखा मैं निचोड़ रहा हूँ शराब का रस। उसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ यूं दी कि तुम इल्जाम से बारी हो जाओगे और दोबारा अपने अहूदे पर बहाल होकर अपने मालिक को शराब पिलाओगे। दूसरे का ख्वाब था कि मैंने देखा कि मैं उठाया हुआ हूँ अपने सर पे रोटी कि खा रहे हैं उसमें से परिंदे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर यूं की कि तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे।
ऐसा ही हुआ, शराबी बारी हो गया और बावर्ची को सजाए मौत हो गई। कैद खाने में आपका नाम मुअब्बर यानी ताबीर देने वाला मशहूर हो गया। उसी दौरान मिस्र का बादशाह आजम रयान बिन वलीद ने भी ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। 7 घोड़े हरे भरे हैं और 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। ए दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरा इस ख्वाब का मतलब बताओ। बादशाह आजम ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की तो लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब परिशा कहकर उसकी कोई ताबीर नहीं सुनाई। इतने में बादशाह का सखी जो कैद खाने से रिहा होकर आ गया था, उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाने में जाने की इजाजत दी जाए। ये बादशाह का कसीद बनकर कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया। बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 7 बरस मुसलसल खेती करो, उनके अनाजों को बालियों में महफूज रखो, फिर 7 बरस तक सख्त खुश्क साली रहेगी। कैद खाने के इन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, उसके बाद फिर हरियाली का साल आएगा। कसीद ने वाक़या जाकर बादशाह से उसके ख्वाब की ताबीर बता दी तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने से निकाल कर मेरे दरबार में लाया जाए। कसीद ने रिहाई का परवाना लेकर जेल खाने में पहुंचा तो आपने फरमाया कि पहले जुलेखा दूसरी औरतों के जरिए मेरी बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार कराया जाए, उसके बाद ही जेल से बाहर निकलूंगा। बादशाह ने उसकी तहकीक कराई और तहकीकात के दौरान जुलेखा ने इकरार कर लिया, मैंने खुद ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाया था, खता मेरी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और पाक दामन है। उसके बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर कहा, आप हमारे दरबार के मुआज़िज़ हैं। कैद साली हवाले से मशवरा हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब जमीन के खजाने, इंतजामी अमूर और हिफाजती निज़ाम के इंतजामात पर मेरा तकरूर कर दे, मैं पूरे निज़ाम को संभाल लूंगा। बादशाह ने खजाने का इंतजामी मामला और मुल्क के निज़ाम का पूरा शोबा आपके सुपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क के मिस्र की हुक्मरानी का इख्तिदा आपको मिल गया। उसके बाद आप खजाने का इंतजाम अपने हाथ में लिए, 7 साल तक खेती की और अनाजों को बालियों में महफूज रखा, यहाँ तक कि कहत साली और खुश्क साली का जोर शुरू हो गया तो पूरी सल्तनत के लोग अनाज की खरीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए। इसी सिलसिले में आपके भाई किन्नान मिस्र आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को देखते ही पहली नजर में ही पहचान लिया। उनके भाइयों ने आपको नहीं पहचाना। आपने उन लोगों को अनाज दे दिया और फिर फरमाया, मुझे मालूम हुआ है तुम्हारा एक भाई और भी है, आइंदा उसको साथ लेके आना, अगर तुम लोग उसको साथ नहीं लाए तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया कि हम उसके वालिद को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि तुम लोग इनके पैसों को भी इनके बोरियों में डाल दो। ये लोग जब अपने घर पहुंचेंगे और नगद को देखेंगे तो जरूर वापस आएंगे। चुनाचे ये जब अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे, अब्बा जान अब क्या होगा? अजीज मिस्र ने कहा है कि जब तक तुम अपने छोटे भाई को साथ नहीं लाओगे तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, लिहाजा आप छोटे को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनके हिस्से का अनाज भी ले लें और आप इत्मीनान रखें, हम लोग उसकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी बोरियां खोली तो हैरान रह गए। अनाज के साथ साथ उनकी रकम भी मौजूद थी। ये देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, इससे बढ़कर और अच्छा सुलूक क्या चाहिए? देख लीजिए, अजीज मिस्र ने हमको पूरा अनाज भी दे दिया है और हमारी रकम भी हमको वापस कर दी है, लिहाजा आप बिला खौफ व खतरा हमारे छोटे भाई को हमारे साथ भेज दें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक मर्तबा यूसुफ के मामले में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूँ और अब मैं दोबारा तुम लोगों पर भरोसा कैसे करूँ? मैं इस तरह बिन्यामीन को हरगिज तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम लोग हल्फ उठाओ, मेरे सामने अहद करो तो अलबत्ता मैं उसको भेज सकता हूँ। ये सुनकर भाइयों ने हलफ का अहद उठा लिया और आपने इन लोगों के साथ बिन्यामीन को भेज दिया। जब ये लोग अजीज मिस्र के दरबार में पहुँचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने मसनब में बिठाया और छुपके से उसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक चाल चली, उन तमाम भाइयों की बोरियां अनाज से भरवा दी और अपने भाई बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला रखवा दिया।
फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि तुम चोर हो। वो सारे भाई मुतवज्जे हो गए और कहने लगे कि तुम क्या गुम कर बैठे हो। वो बोले, हमारा एक शाही प्याला गुम हुआ है, जो उसे ढूंढ लाएगा उसे एक ऊंट का बोझ मिलेगा। सारे भाई बोले, अल्लाह की कसम हम तो चोर नहीं हैं। तो पुकारने वाले ने कहा कि अगर तुम पर चोरी साबित हो जाए तो क्या सजा है। वो भाई बोले कि जिसके पास वो प्याला निकले वो बंदा ही उसकी सजा है। फिर उन्होंने सामान की तलाश शुरू कर दी। पहले दूसरे भाइयों का सामान खंगाला और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली। बिन्यामीन के सामान से वो शाही प्याला निकलकर बाहर आ गया। बेशक हमारा बाप बूढ़ा है और लंबी उम्र वाला है और उसकी जगह हमें पकड़ लो। भाई कहने लगे, ए अजीज मिस्र, हम देखते हैं आपको एहसान करने वालों में से। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की पनाह पकड़े, सिवाय उसके हमने पाया अपने सामान जिसके पास बेशक मैं उस वक्त जालिमों से हूँगा। अब बरादराने यूसुफ सख्त परेशान हो गए। अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेलकर उसकी हिफाजत करेंगे, और यहाँ बिन्यामीन उनके हाथों से छीन लिया गया। और अब घर जाएं तो कैसे और ठहरे तो कैसे। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, मेरे भाइयों सोचो, तुमने अपने वालिद को क्या वादा किया है। इससे पहले भी तुम अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी कोताही कर चुके हो। लिहाजा मैं तो उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक वालिद साहब खुद आने का फरमाए या अल्लाह ताला उस मामले का कोई हल फरमा दे। चुनाचे यहूदा के सिवा सारे भाई लौट कर घर आए और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से सारा हल बयान कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ की तरह बिन्यामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हिलाबाज की है। खैर, मैं सब्र करता हूँ, सब्र बहुत अच्छी चीज है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा, हाय अफसोस मेरा यूसुफ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर कर इतना रोए कि शिद्दत गम से निढल हो गए और रोते रोते आंखें सफेद हो गई। आपकी जुबान से यूसुफ का नाम सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटों और पोतों ने कहा, अब्बा जान, आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक के लब गोर हो जाएं या जान से गुजर जाएं। आपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया कि मैं अपने गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ और मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम लोग को मालूम नहीं। फिर फरमाया कि मेरे बेटों, तुम लोग जाओ यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन को तलाश करो। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। चुनाचे ब्रदराने यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज मिस्र से कहा, ए अजीज मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच चुकी है। आपने भाइयों की जुबान से घर की दास्तान सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रखतदारी हो गए और अपने भाइयों से पूछा कि तुम लोग को याद है तुम लोग ने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या सुलूक किया है। ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा, सच आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं? आपने फरमाया कि हाँ, मैं यूसुफ हूँ और बिन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजलो एहसान किया है। ये सुनकर भाइयों ने निहायती शर्मिंदगी के साथ कहना शुरू कर दिया, बेशक हम लोग वाकई बड़े खताकार हैं और अल्लाह ताला ने आपको हम पर बड़ी फजीलत बख्शी है। भाइयों की शर्मिंदगी से मुतासिर होकर आपका दिल भर आया और आपने फरमाया कि आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूंगा, जाओ, मैंने सब कुछ माफ कर दिया, अल्लाह ताला तुमको माफ फरमाए। अब तुम लोग ये मेरा कुर्ता ले जाओ, अब्बा जान के चेहरे पे डाल दो तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। फिर तुम सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र चले आओ। बड़ा भाई कहने लगा कि ये कुर्ता मैं ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं ही आपका कुर्ता बकरी के खून में रंग कर अपने वालिद के पास ले गया और उन्हें ये कहकर गमगीन कर दिया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, तो मैंने उनको गमगीन किया था और आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की खुशखबरी भी मैं ही सुनाऊंगा और उनको खुश करना चाहता हूँ। यहूदा उस कुर्ते को लेकर नंगे सर दौड़ते हुए चला गया। जल्द से जल्द सफर तय कर वालिद मोहतरम के पास जा पहुँचा। जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से किन्नान की तरफ रवाना हुआ, उधर किन्नान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई। आपने अपने पोतों से फरमाया कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बुढ़ा सटिया गया है तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपके पोतों ने जवाब दिया, खुदा की कसम आप अब भी इस पुरानी बात में पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ है और कहाँ है उनकी खुशबू। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर किन्नान पहुंचा
और जैसे ही कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाला तो फौरन ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया तो उसने यूसुफ की कमीज उसके मुंह पर डाल दी और फौरन ही उसकी बिनाई वापस आ गई। उन्होंने अपने बेटों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त अपने सब बेटों के लिए दुआएं मगफिरत फरमाए और ये दुआ कबूल हो गई। चुनाचे आप पर वही उतरी कि आपके साहबजादों की खताएं बख्श दी गई है। फिर मिस्र को रवानगी का सामान्य सफर हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घर के अहलो आयाल लाने के लिए भाइयों के साथ 2-2 सवारियां भेज दी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सब घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे जिनको साथ लेकर मिस्र रवाना हुए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इस्राइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज्यादा थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने के सिर्फ 400 साल बाद का जमाना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो आयाल के साथ मिस्र के करीब पहुँचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्र सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद यहूदा को कहा, ये फिरौन मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने अर्ज किया कि जी नहीं, ये आपके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जो अपने लश्कर और सवारों के साथ आपके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। मलाइकों की तस्बीह और घोड़ों की हनहनाहट की आवाज ने अजीब सा समा पैदा कर दिया था। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप जरा इंतजार कीजिए। चुनाचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन लफ्जों में उनको सलाम कहा कि अस्सलामु अलैकुम या मसाबल एहजान, तमाम गमों को दूर करने वाले आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटे बड़ी गर्म जोशी से मिले और मुसरत में दोनों खूब रोए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्त शाही पे बिठा दिया और आपके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी वालिदा बैठी हुई और सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इससे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद खाने से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। उसके बाद शैतान ने मुझे और मेरे भाइयों में नाशक्की करा दी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहता है आसान कर दे और बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे वालिद सूरज हैं और मेरी वालिदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर चीज करने पर कादिर है।